Yes. In the last session, we learned how to draw or how to construct a parabola and three different methods for construction of parabola, right? In this session, we are going to learn how to construct a hyperbola with different methods. So there are total three methods to construct a hyperbola. First one is through a point of known coordinates, right? For this method, I'll take one problem. Problem says that a point P is 40 mm and 30 mm from horizontal and vertical, right? So 40 mm from horizontal and 30 mm from vertical axis, right? Respectively. Draw the hyperbola through it, right? So for that I'll have one solution step. So let's just follow these solution steps, right? So first of all, we have to construct one x-axis and y-axis, right? For vertical and horizontal axis. And from the origin we have to measure 40 mm from the horizontal, right? So this इस horizontal line से हमें 40 mm height पे जाना है and then 30 mm from vertical axis, right? This is our vertical axis and 30 mm away from the vertical axis, right? Now you have to join both this line from 40 mm and 30 mm, so you will get one point, right? Point P, that should be 40 and 30, right? 40 mm from X and 30 mm from Y. So you also can describe this point directly as a 30 comma 40, right? 30 axis, 30 mm on X axis and 40 mm on Y axis, right? Now what we have to do, we have to mark some points taking any distance, राइट? कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप पॉइंट्स बनाएंगे. 1 2 3 points on vertical line and 2 points on horizontal line, like this, right? कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, उसमें कोई आपको मेजर करना नहीं है. टेक एनी रैंडम डिस्टेंस, राइट? नाउ we have to extend this line from point P, right? Now what we have to do, we have to draw a straight line from this origin O passing through the point 1 and up to this horizontal line, right? Like this. And from point 2 like this and from point 3 like this. You have to start your line from origin point O passing through these vertical points and up to this horizontal line. You have to touch or cut this horizontal line with these straight lines, right? Similarly, also on this vertical line you have to start line from this origin O passing through this 1 and 2 point and up to this vertical line, like this and like this, right? So you will get some different points. Now these points you have to number it 1 2 3, similarly 1 and 2, right? So after drawing these drawings, what you have to do, you have to construct one straight lines, right? Like this. आपको यहाँ पे पॉइंट 1 मिला है, तो पॉइंट 1 से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली नीचे की तरफ लेके आइए और हॉरिजॉन्टल यहाँ से उसी तरीके से फ्रॉम पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 एंड हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 एंड सिमिलरली पॉइंट 3. So 1 point, 1 point, 2 point and 3 point को vertical and horizontal line से आपको join करना है, making triangles, right? So एक total एक triangle बन जाएगा and जो triangle का वो 90 डिग्री एंगल आपका बनेगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे points देना है आपको. Similarly on the vertical side, from horizontal line you have to draw upward vertical line
like this, and from this point 1 and point 2 you have to draw horizontal lines like this. So you will get 2 more points, right? So now ये जो लास्ट में आपने पॉइंट्स गेन किए उस सब लाइन पॉइंट्स को आपको फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है लाइक दिस. सो आपका जो हाइपरबोला है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट? समझ में आया है ये मेथड? यस सर. यस सर. यस यस यस. एनी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. सर ये बाकी का मेथड तो समझ में आ गया, बट वो जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स का आपने बोला ना कि वर्टिकली 2 पॉइंट्स है, हाँ हाँ 3 पॉइंट्स और हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट्स है, वो वाला नहीं समझ में आया कि वो Okay. पॉइंट्स कैसे बनाने. पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको समझाया. ये जो पॉइंट्स बनाने की बात है मैंने ये थर्ड स्टेप में आपको लिखा है. ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम P मार्क सम पॉइंट्स टेकिंग एनी Hello, sir. डिस्टेंस. यस यस. सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो सर स्टार्टिंग वाला मैंने देखा नहीं, तो प्लीज करवा देंगे फिर से. कौन सा स्टार्टिंग वाला? ये प्रोग्राम 10 का स्टार्टिंग से. हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ फुल प्रोग्राम. ये हाइपरबोला है. फर्स्ट मेथड जो है हम कंस्ट्रक्शन की वो देख रहे हैं. प्रॉब्लम है पॉइंट इज 40 mm एंड 30 mm फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस respectively, right? So for that we have to draw a horizontal axis and vertical axis, x and y axis, and give origin point O, right? Now first of all we have to draw 40 mm from the horizontal and 30 mm from the vertical, जैसे ही हमें प्रॉब्लम में दिखाया है. एंड उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपको एक पॉइंट मिलेगा, राइट? नाउ जैसे मैं समझा रहा था आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ये एंड वर्टिकल लाइन ये जो आपको मिली है उस पे रैंडम पॉइंट्स लेने हैं आपको. 3 ही लेने हैं या 4 ही लेने हैं या 2 ही लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. रैंडम पॉइंट्स एट रैंडम डिस्टेंस. कोई भी पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पे आप डायरेक्टली ले सकते हो और उसको नंबरिंग इस तरीके से देना है. पॉइंट से स्टार्ट करना है 1 2 3. आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट वो कितने में होना चाहिए? पॉइंट P एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब पॉइंट्स के बीच में सिमिलर डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ नहीं. रैंडम पॉइंट्स लेने हैं रैंडम डिस्टेंस के साथ. मैंने यहाँ पॉइंट 3 में आपको मेंशन ही किया है, मार्क सम पॉइंट्स टेकिंग एनी डिस्टेंस. कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, बस ये पॉइंट P एंड ये एक्सिस है उसके बीच में आपको पॉइंट्स लेने हैं लाइक दिस. मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी तो 2 पॉइंट लिए, यहाँ पे 3 पॉइंट लिए. आप यहाँ पे 4 ले सकते हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3. आप किसी भी तरीके से अपने पॉइंट्स आप ले सकते हो, राइट? नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू, वी आफ्टर गिविंग दिस नंबर्स we have to extend this point from like this horizontally and vertically, and then you have to draw straight lines from the origin से start करके आपको point 1 में से पास होते हुए ये जो lines बनी है वहां तक आपको lines straight lines draw करनी है like this. Similarly for these points up to this line, right? ये जो भी आपने रैंडम पॉइंट्स लिए है उसमें से पास होती हुई लाइन बनानी है. ओरिजिन में से स्टार्ट करके पॉइंट्स में तब पास होती हुई इस लाइन को कट कर दे तब तक आपको ड्रॉ करनी है, राइट? नाउ उसके बाद ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपने बनाई उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे. उस पॉइंट्स को नंबरिंग दे देना सेम. अगर ये 1 पॉइंट में से पास हो रही है तो इस लाइन यहाँ पे 1, 3 नंबर में से पास हो रही है तो यहाँ पे 3, राइट? नाउ what you have to do, we have to do this 1 point and 1 point horizontally and vertically. आपको उसको ज्वाइन करना है. सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन यहाँ से बना देता हूँ 2 में से भी एंड 3 में से भी. स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन 90 डिग्री लाइन्स, राइट? एंड फ्रॉम दिस 1 पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन्स लाइक दिस. सो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, राइट? सिमिलरली ऑन द वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे एंड यहाँ पे horizontal lines from these points, so you will get 2 another points like this. अगर यहाँ आपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, राइट? एंड
ये जो पॉइंट आपको मिले उस पॉइंट को आप फ्री हैंडेडली ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको आपका रिक्वायर्ड हाइपरबोला जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट। अब किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? नो सर। Okay. No, So, sir. okay, no problem. So, on the homework, I'll give next coordinates. For this 40 mm, instead of this 40 and 30 mm, you will take 35 and 35, right? Both side 35 mm डिस्टेंस लेके आपको एक हाइपरबोला होमवर्क में कंप्लीट करना है, राइट? હેલો સર यस. સર હું નવી બુક બનાવું એડી ની એમાં ડાયરેક્ટ ડ્રોઈંગ જ ચાલુ કરો ને કે यस. પ્રોબ્લેમ ડાયરેક્ટ प्रॉब्लम लिखना है एंड देन उसके बाद आप ड्राइंग कीजिए। प्रॉब्लम लिखने के टाइम भी ये लिखे कि आप कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम में ये लिखे हाइपरबोला थ्रो कौन मेथड, दिस मेथड, एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद ये ड्राइंग कीजिए। आपको ये सॉल्यूशन स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? સર આપણે એડી ના રૂલ પ્રમાણે જે શું કહેવાય અક્ષર ની ફોન્ટ ની સાઈઝ આવે આપણે ગમે એટલી રાખી રાખી કે પછી તમે કયો એ પ્રમાણે કે એમએમ ઉપર રાખવાનું બુક ये जो आप राइटिंग लिख रहे हो ये ઓકે रेंड उस हिसाब से रखना कि 5 mm या 3 mm की राइटिंग्स रहे सारी, राइट? ये जो प्रॉब्लम की राइटिंग आप जो लिख रहे हो, प्रॉब्लम लिख रहे हो, उसमें कोई वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वो आप नॉर्मल आपकी जो लिखाई है उसका यूज कर सकते हो डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखने में, राइट? એટલે આપણે ટાइप्स ऑफ लाइंस થી ચાલુ કરવાનું ને પહેલા यस, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से। ડ્રોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ यस, એટલે वहां से સર એક હું બે બુક બનાવું એક થિયરી બુક જેમાં તમે સ્ટેપ્સ ને બધું લખાવો એમાં લખું અને સેકન્ડ કે એક ખાલી ડ્રોઈંગ ને ઉપર જે લખવાનું પ્રોબ્લેમ આવે ઈ તો ચાલે એવી પણ રીતે નહીં, એવું કરીશ તો તું જ કન્ફ્યુઝ થાઈશ। જેટલું અલગ કરીશ બે બુકમાં એટલો તું વધુ કન્ફ્યુઝ થાય। એ કરતા હું એમ કહું છું તને એક જ કોમન બુક રાખ, લખવાનું આવે એમાં લખી નાખવાનું અને જે ડ્રોઈંગ આવે ડ્રોઈંગ કરતો જાય। પૂરી બુક જે છે એ સ્કેચ બુક રાખવાની, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ ન પડે। અને કાંઈ વાંધો નહીં આ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ શીટ લખવાનું છે કે નથી લખવાની હાલશે કઈ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ શીટ? મારા પાસે ઓલરેડી એક પીડીની બુક છે તમે કહેતા હોય તમારા વોટ્સએપમાં લેક્ચર પછી સ્ટાન્ડર્ડ એક મિનિટ, જેમાં લાઇનિંગ્સ નથી, રાઈટ? સોરી પ્લેન બુક છે ને જેમાં લાઇન્સ ન હોવી જોઈએ, બસ એવી બુક તમે યુઝ કરી શકો। હા ઈ તમારું સાચું પણ આપણે જે તમે ઈડીમાં તમે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હા કે હા શીટની સાઈઝ ને સેક્શન વાઇઝ સ્કેલ ને બધું આવે ઈ હા હા લખવું હા, એ બધું લખવું પડશે। કારણ કે ઓલરેડી મારા પાસે આખી ઈડીની બુક પડી છે તમે આ બધું કરાવો છો ને હા, પણ બુક પડી છે, જો બુક તો બધી પડી છે તો અમે તમને શું કામ ભણાવીએ છીએ? હા એ તમારું સાચું કારણ કે પેલા અમે ડિપ્લોમા કરેલું હતું ને એટલે હા, બધી બુક શીટનો પડી ચાર્જ છે પણ એ તમે ડિપ્લોમામાં કરેલી છે, અત્યારે આમાં કરો છો તમે, એ તો રહેવાનું જ છે ને। ત્યારે ટૂંકમાં ડિપ્લોમામાં કરેલું હોય એ બધું તમને અત્યારે યાદ ન હોય તમને, એટલા માટે। ના મેં લાસ્ટ યર જ મેં કર્યું હતું હા, બધી વાત સાચી, પણ ફરીથી તોય ડ્રો કરો ને, પ્રેક્ટિસ થાય છે તો તમારો હા સારું છે। જેટલી પ્રેક્ટિસ હું કરી વધશે એટલો શકું, તમારો જ ફાયદો છે। હું એમ કહું છું મારા પાસે ઓલરેડી પડ્યું છે બધું મટીરિયલ હું તમને એના પિક મોકલાવું તમે જોઈ લેજો કે એ એક બધું કામ કરશું, એ પર્સનલમાં આપણે વાત કરશું। જનરલી અત્યારે તમારે બધાની સાથે ડ્રોઈંગ કરવાના જ છે જે હું કરાવું છું એ। હા એ તો મારો ચાલુ જ છે हाँ મેં हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। आप हम पर्सनली में बात कर लेंगे उसके लिए, आपका जो भी बुक और जो भी है वो सब अभी यहाँ पे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड मेथड हाइपरबोला with the help of PV diagram, right? So let's take some problem, real problem. A sample of gas is expanded in the cylinder from
10 units pressure to 1 unit pressure, right? Expansion follows the law PV is equal to constant. आपका फिजिक्स में ये फॉर्मूला है, वो आपने 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. PV is equal to constant. P represents pressure and V represents volume, right? In the initial volume being 1 unit, draw the curve of expansion, also name the curve, right? So first of all, let's form a table of PV values or PV diagram values. Like आपका 10 unit pressure है, right? So if pressure is 10 unit, then my volume is equal to 1 unit as per this equation, right? P multiplied by V is equal to constant. So constant हमारा यहाँ पे 10 है, तो 10, अगर pressure 10 है, then volume must be 1, right? And if I take 5 pressure, then my volume should be 2, because 5 multiplied by 2. उसी तरीके से मैं some random units लेके आया हूँ. 4 multiplied by 2.5 is equal to 10, 2.5 multiplied by 4, 2 multiplied by 5 and 1 multiplied by 10. So मुझे randomly 6 different values मिली है pressure and volume की, जो ये PV is equal to constant को follow कर रही है, right? Now from these values we have to draw a graph like this, right? Pressure against volume. So सबसे पहले मैं दो एक्सिस ले लेता हूँ, x axis and y axis. On this axis horizontally I'll keep volume and vertically I'll keep pressure, right? वॉल्यूम को मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ले रहा हूँ एंड प्रेशर को मैं वर्टिकल लाइंस पे ले रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? 10, प्रेशर 10 एंड वॉल्यूम 1. सो फ्रॉम प्रेशर 10 यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ एंड वॉल्यूम में से 1. सो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, राइट? सिमिलरली प्रेशर 5, वॉल्यूम 2. प्रेशर में से 5th पॉइंट एंड वॉल्यूम में से 2nd पॉइंट. Similarly, pressure 4 and volume 2.5. Similarly, pressure 2.5 and volume 4. And pressure 2, volume 5 and at the last pressure 1 and volume 10. आपको जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिले उसको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. सो पॉइंट्स जो है आपको इस तरीके से कुछ मिलेंगे, राइट? 6 डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस ग्राफ. आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फ्री हैंडेडली ये जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर लेना है एक दूसरे के साथ. सो आपको आपका हाइपरबोला कर्व जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट? एंड इस कर्व को आप डायरेक्टली नेम दे सकते हो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? PV इज इक्वल टू C. इजी मेथड है, समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. सर वो क्वेश्चन में 10 यूनिट प्रेशर का बोला है, इसीलिए आपने कांस्टेंट इधर 10 ही रखा. देखो 10 यूनिट प्रेशर एंड 1 यूनिट, 10 यूनिट में से प्रेशर जो है 1 यूनिट तक एक्सपांड हो रहा है, राइट? सो प्रेशर 10 यूनिट से 1 यूनिट तक प्रेशर एक्सपांड हो रहा है मैक्सिमम. सो अगर एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम जो है वो इसी उसका इंक्रीज होता रहेगा, राइट? अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है देन प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट? यूनिट जो है वो गैस सिलेंडर के अंदर 10 यूनिट है टोटल. सो मैक्सिमम जो है यूनिट वो मैं यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ले लूंगा एंड देन P एंड V का एक चार्ट बना लूंगा, राइट? आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम यूनिट मिलेगा उसको एज अ कांस्टेंट लेके आपको आगे बढ़ना है, राइट? ओके, सो नाउ I am moving for the last method of hyperbola. That method is known as a directrix and focus method, right? So for that I'll just take one problem.
that problem is a point F is 50 mm from line AB. So first of all, I'll draw line AB vertically, right? Directrix. And then I have to draw a point F that is 50 mm from line, right? Focus is 50 mm away from this vertical line, right? This distance is 50 mm. Now what I have to do, I have to draw a moving point P such that the ratio of distancing from F and line AB remains constant and equals to 2:3. मुझे एसेंट्रिसिटी दी गई है 2:3. आपको पहले भी पता है, फॉर द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी विल बी ऑलवेज मोर देन 1 और लेस देन 1. हेलो सर. यस. ये सर इलिप्स का है. इलिप्स का नहीं है. स्टेप्स में लिखा. ओके सॉरी, स्टेप्स जो है इलिप्स के लिखे हैं, कोई बात नहीं, बट वो सेम स्टेप जो है इसमें भी फॉलो होंगे. यहाँ पे सिर्फ इलिप्स है, वो कॉमन प्रिंट हो गया और कुछ नहीं है. देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोकस एंड वर्टेक्स, राइट. सिमिलरली इस तरीके से ही ड्रॉ करना है जिस तरीके से हमने इलिप्स में ड्रॉ किया था, बट एसेंट्रिसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट. हमने सेम मेथड देखा है इलिप्स में. फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड जो है सेम है, बट हाइपरबोला और इलिप्स में फर्क क्या रहेगा, सिर्फ एसेंट्रिसिटी का. तो मैं यही पूछ रहा हूँ, हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 और लेस देन 1? More than one. More than Equals to one. one. ओके, कौन बोल रहा है इक्वल्स टू 1? I'll just start. इलिप्स में था या हाइपरबोला में? स्केल ऑफ कोड आ गया, वेट. I'll just कॉनिक सेशन में आपको मैंने जब सिखाया था, ये रहा यहाँ पे, फॉर द इलिप्स लेस देन 1, फॉर द हाइपरबोला इक्वल्स, फॉर द पैराबोला इक्वल्स टू 1, फॉर द हाइपरबोला मोर देन 1, राइट. सो ऑलवेज हाइपरबोला में आपकी जो एसेंट्रिसिटी होगी उसकी वैल्यू मोर देन 1 रहेगी. बट सो इन दिस प्रॉब्लम जो बोल रहा था स्टूडेंट, दैट ये जो प्रिंट आई हुई है प्रॉब्लम की, वो इलिप्स की मैंने प्रिंट ली हुई है डायरेक्टली, यही दिखाने के लिए कि इलिप्स के प्रॉब्लम, इलिप्स की जो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड है उससे हाइपरबोला की फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड जो है वो कितनी चेंज है, राइट. सबसे पहले एसेंट्रिसिटी 3:2 आएगी फॉर द हाइपरबोला, राइट. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, for the hyperbola eccentricity will be 3/2, so it will be more than 1, right. So 2:3 and 3:2 में क्या फर्क रहेगा, अगर 2:3 हम लेते हैं देन हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट है 2:3 आएगा, राइट. बट अगर 3:2 लिया तो हमारा ये वर्टेक्स पॉइंट इस जगह पे यहाँ पे आएगा, राइट. एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? 3 पॉइंट फ्रॉम लाइन ए बी एंड 2 पॉइंट्स फ्रॉम फोकस. होगा कि नहीं होगा? Yes. यस या मैं उल्टा बोल रहा हूँ? मैं जानबूझ के उल्टा बोल रहा हूँ, फिर भी आप यस बोल रहे हो. समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को समझ में नहीं आया? देखो मैं एक काम करता हूँ, आप ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे 2:3 इसेंट्रिसिटी है, कोई बात नहीं. यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, फोकस एंड लाइन दिखाया है. जो हमारा पैराबोला जब मैंने लिया था तब मैंने, सॉरी पैराबोला नहीं, इलिप्स,
इलिप्स जब मैंने लिया था उसके लास्ट मेथड जो है वो मैं आपको शो दिखा रहा हूँ। उसमें आप देखिए सर्कल ऑफ आर्क्स, रोम्बस एंड डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे भी सेम है, मैंने दिया है आपको। बट यहाँ का वर्टेक्स जो है वो कैसे दिखाया है आपको, देखिए फोकस में 2 पॉइंट एंड लाइन ए बी में 3 पॉइंट है, समझ में आ रहा है? फोकस में 2 पॉइंट, लाइन ए बी में 3 पॉइंट। यस The screen is not visible. okay, sorry, screen is not visible. I'll just share the screen again. Why स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? यस, अब स्क्रीन शेयर आ गई है सबको? यस। तो एसेंट्रिसिटी फोकस टू वर्टेक्स डिवाइड बाय वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स जो डिस्टेंस है वो 2:3 है, राइट? फोकस टू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस जो है वो 3:2 है। मीन्स ये वर्टेक्स हमारा जो है थर्ड पॉइंट पे, यहाँ से थर्ड पॉइंट पे आएगा, राइट? अगर मैं हाइपरबोला में सेम में अगर देख रहा हूं देन यहाँ पे आप देखना मेरा जो वर्टेक्स था वो मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिया हुआ है। ये क्यों इरेजर क्यों नहीं आ रहा है भाई? ओके, ये जो पुराना वाला है वो यहाँ पे शो केस है। मेरा वर्टेक्स है वो सेकंड पॉइंट पे है, यहाँ थर्ड पॉइंट पे नहीं है, राइट? ये याद रखना है आपको। एसेंट्रिसिटी सिर्फ उल्टी है, 3:2 आपको लेना है यहाँ पे, 3:2। सो फोकस से आपको 3 पॉइंट, फोकस से 3 पॉइंट, सो ये पॉइंट आएगा, ये नहीं आएगा, एंड लाइन ए बी से 2 पॉइंट, लाइन ए बी से 2 पॉइंट। तो मैंने वर्टिकल एक्सिस जो लिया है वो वर्टेक्स और सेम यहाँ पे वर्टेक्स लिया है इस पॉइंट पे। एंड देन आपको क्या करना है, नॉर्मली जो हम फॉलो कर रहे थे मेथड इलिप्स में, सेम मेथड, बट उस तरीके से ध्यान रखना है फोकस में से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहना चाहिए 3 एंड एसेंट्रिक आपका जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है वो कम रहेगा। सो यहाँ पे जैसे हमने 30-45 लिया था उसकी जगह पे 45-30 होगा, राइट? 45-30 सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे 60-40 था जब, तो उसकी जगह पे हम लेंगे यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे 40, राइट? इलिप्स में उल्टा था, ये 40 की जगह पे 60 था एंड 60 की जगह पे 40 था। इतना ही सिर्फ डिफरेंस है इलिप्स एंड हाइपरबोला में। और आपको इस तरीके से आपको आपका वर्टेक्स से पास होता हुआ कर्व आपको जनरेट होगा। इलिप्स एंड हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एसेंट्रिसिटी जो है वो उल्टी हो जाती है, उसमें ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन 1 है और इलिप्स में 1 थी। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये जो डिस्टेंसेस है हमने जो इलिप्स में लिए थे वो उल्टे हो जाते हैं, 45/30 हो जाएंगे, ये 60/40 एंड दिस विल बी द 75/50, राइट? तो सेम डिस्टेंस का मैंने यूज किया इस यहाँ पे एंड इस मेथड को कंप्लीट किया है, राइट? सिर्फ डिफरेंस इतना ही रहेगा, यहाँ पे हाइपरबोला आ जाएगा, दिस विल बी द हाइपरबोला एंड ये डिस्टेंसेस जो है वो उल्टे हो जाएंगे, राइट? देखो यहाँ पे इलिप्स में हमने क्या लिया था, टेकिंग 45, 60 एंड 75 डिस्टेंसेस फ्रॉम लाइन ए बी, राइट? बट ये हाइपरबोला में हमारा उल्टा हो गया, 45, 60 एंड 75 फ्रॉम द फोकस, राइट?
एंड 30, 40, 50 डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस, उसकी जगह पे हमने 30, 40 एंड दिस लास्ट विल बी द 50। ये जो 50 डिस्टेंसेस है, ये आपका 30 है, दिस विल बी द 40 एंड दिस विल बी द 50, राइट। यहाँ पे 40, दिस विल एंड ये 30 है। ये डिस्टेंसेस है वो हम फोकस की जगह पे लाइन ए बी में से डिस्टेंसेस लेंगे, राइट। इतना ही डिफरेंस है इलिप्स एंड हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड में। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस ओके सर। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो हाइपरबोला है वो कंप्लीट हो रहा है एंड हमारा लेक्चर भी टुडे इतना ही हम लेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विमल परमार सर आपके लेक्चर लेंगे, जो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाले चैप्टर जो है वहां से स्टार्ट करेंगे आपको। ये जो चैप्टर है वो हाफ जो अभी मैं छोड़ रहा हूँ उसको मैं वापस कंटिन्यू करूंगा, राइट। Yes, sir. ओके, ओके सर। so let me just take your Hello, sir. attendance. Yes, Hello. yes. સર જે વિમલ સર ની સ્કેચ બુક નોખી બનાવવાની કે તમારામાં જ નહીં લખવાની? નહીં નહીં, નોખી બનાવવાની જરૂર નથી, મારામાં જ લખવાનું કોમન જે રીતે લેક્ચર ચાલે જાય છે એ જ રીતે તમે સ્કેચબુકમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ લખતા જ રહેજો, ઓકે। જગ્યા છોડવાની જરૂર નથી? નહીં નહીં નહીં, જગ્યા છોડવાની જરૂર નથી, ઓકે સર। ઓકે। થેન્ક યુ વેરી મચ।